A very good morning, all of you. I hope all of you are healthy and safe. Have a look. Yesterday, we have started chapter number 3 of microeconomics, in which we have covered the meaning of demand. I will just recall the definition for all of you. Then, after we will start our today's topic. Yesterday, we have discussed that demand for a commodity refers to desire to buy the commodity. It means we must have a desire to purchase something. In order to convert it into demand, we need two more things. Number one, sufficient purchasing power, and number two, willingness to spend money. These are the two things which we need along with desire. Desire to purchase something. Along with this desire, we need sufficient purchasing power, and we also need the willingness to spend money at the given period of time, right? So when we combine all these things, it becomes demand for a commodity. We have also completed demand curve and demand schedule in our last class. We have focused on the inverse relationship between price and quantity demanded. We have seen that whenever there is an increase in price, consumer prefers to consume more. He demands less of the less, not more. If price rises, then consumer demands less, and if price falls, consumer demands more. ये हमने कल पढ़ लिया था with the help of demand curve and demand schedule. Now our today's topic is determinants of demand. हमने कल दो तरीके की डिमांड पढ़ी थी ना, इंडिविजुअल बायर की और मार्केट के सभी बायर्स की. तो आज हम पहले देखते हैं कि एक इंडिविजुअल बायर की डिमांड कैसे किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है. आप अगर एक इंडिविजुअल बायर हो, आप कुछ भी कमोडिटी परचेज करने जाओगे तो देयर विल बी वेरियस फैक्टर्स दो एंड ऑल दोस फैक्टर्स विल बी अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ योर कमोडिटी, राइट. तो हमें देखना है कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करेंगे. नंबर वन, सबसे पहला फैक्टर जो है वो सबसे इजी है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कमोडिटी की प्राइस से. Other things remaining constant, generally price और quantity demanded में कैसा relation रहेगा? Inverse. When price rises, quantity demanded will fall, and when price falls, quantity demanded will rise. सबसे simple point है point number 1. Have a look what you have to do. You have to write over here. यहाँ पे आप लिख लीजिए. इस तरीके से आप arrow बना दीजिए. कैसे? Price increase, quantity demanded decrease, and price decrease, ये first part हो गया. Number 2, price decrease, quantity demanded increase, ये second part हो गया. यही आपको point में लिख के दिया हुआ है language के form. क्या लिख के दिया हुआ है? Other things remaining constant, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. It means every time with the rise in price, consumer prefer to consume less of the commodity. वो उसकी demand ही कम कर देता है with rise in price. And every time with a fall in price, we the consumers are willing to purchase more of a commodity. हम ज्यादा खरीदना चाहते हैं जब चीजें सस्ती हो जाती है. General situation में ऐसा होता है. अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी आप प्राइस की बात करोगे, आप प्राइस के साथ लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ मैंने डिमांड नहीं लिखा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है. तो जब भी मैं प्राइस की बात करूंगी, प्राइस के साथ में मैं क्या लिखूंगी? क्वांटिटी डिमांडेड. It means other things remaining constant, with an increase in price of a commodity, quantity demanded of the commodity falls, and with the fall in price of a commodity, quantity demanded of a commodity rises. Example of tea is given. If the price of tea increases, its quantity demanded will fall, as satisfaction derived from tea will fall due to rise in its price. Price बढ़ जाएगी तो लोगों को वो चीज कम अच्छी लगेगी. ये जनरल assumption होता है. आगे बढ़ते हैं. अब other than price also, there are various factors which affect the demand of any commodity. We are not only influenced by price, we are influenced by many other factors. ठीक है? तो वो other factors कौन से हैं उनको पढ़ेंगे. तो देखिए, the following determinants are termed as other factors or factors other than
प्राइस, ये प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स है, प्राइस नहीं है, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स है। तो प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में फैक्टर नंबर 1 आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं वैसे गुड्स के भी रिलेटिव्स होते हैं। कैसे होते हैं रिलेटिव्स? शूज और सॉक्स, आप देखिए आप शूज और सॉक्स को साथ साथ पहनते हैं। शूज और शू पॉलिश आप साथ साथ में रखते हैं। मार्कर और इंक एक साथ यूज होगी, राइट। पेंसिल और इरेजर दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है। तो रजिस्टर और पेन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। बुक और नोटबुक दोनों का कुछ रिलेशन है ना, ये कुछ गुड्स है जिनका कुछ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या फैन और शूज का कोई रिलेशन है? नो, फैन और शूज का कोई रिलेशन नहीं। क्या मैगी और शुगर का कोई रिलेशन है? नो, मैगी और शुगर का आपस में कोई रिलेशन नहीं। क्या सॉक्स का और आपकी बुक्स का कोई रिलेशन है? नो, ये नॉन रिलेटेड गुड्स होते हैं जिनमें कोई रिलेशन नहीं। लेकिन बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो रिलेटेड है। मैगी एंड मैगी मसाला, पास्ता एंड चीज, ये रिलेटेड गुड्स है ना, आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो पहले हम देखते हैं रिलेटेड गुड्स किसको कहा जाता है। नया टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। हैव अ लुक। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बेटा, वी आर डिस्कसिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कौन कौन सी चीजों से डिमांड पे फर्क पड़ता है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिटर्मिनेंट नंबर 2 इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जो हमारी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। The goods which impact the demand of our commodity are known as related goods. Have a look what is written over here. Related goods are the goods in which change in price of one good causes change in demand for other good. एक की प्राइस चेंज होगी तो दूसरे की डिमांड चेंज हो जाएगी। एक की प्राइस में चेंज आते ही दूसरी वाले की डिमांड में चेंज आ जाएगा। उनको क्या कहते हैं? रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी is also affected by change in prices of related goods. Related goods are of two types. दो तरीके के related goods होते हैं। देखिए अच्छे से समझिए इसको। मैं यहाँ पे दो नाम लिख रही हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने? कोलगेट। क्या लिखा? डाबर रेड पेस्ट। अब देखिए, अब जनरली हम बात करते हैं क्लास में, किससे बात करें बताएं? कौन मेरे क्वेश्चंस का क्विकली आंसर देने के लिए रेडी है? बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आपसे रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन है। चलिए जानवी से बात करते हैं। चलिए जानवी, आप रेगुलरली, हम एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं। सपोज आप रेगुलर बेसिस पे कोलगेट से ब्रश करते हैं, ठीक है, आप कोलगेट यूज करते हैं। अब अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद है। शॉप पे कोलगेट नहीं है, आपके घर पे पेस्ट खत्म हो गया है, टूथपेस्ट खत्म हो गया, और पापा गए पास वाली शॉप पे कोलगेट लाने के लिए, कोलगेट नहीं है। वहां एक ही टूथपेस्ट है। चलो सेकंड प्रायोरिटी आप क्लोजअप को देते हो, पापा इनका क्लोजअप दे दो, उनका क्लोजअप भी नहीं है, पेप्सोडेंट भी नहीं है। हमारे पास तो एक ही पेस्ट है, डाबर रेड पेस्ट। बताइए क्या आपके फादर लेके आएंगे इसको? हाँ। नहीं या यस? नो या यस? यस मैम, लेकर आएंगे क्योंकि फिर है ही नहीं पेस्ट, तो डेली यूज का हाँ। सामान है। अच्छा, क्या आप कोलगेट की जगह डाबर रेड को यूज कर सकते हो? क्या दोनों का सेम फंक्शन है? यस मैम। दोनों का काम तो एक ही है, मॉर्निंग में हमें फ्रेशनेस देना, हमारे टीथ को क्लीन करना, दोनों का यस। सेम काम है। तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, उन गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे माजा पीने का मन हो रहा है, माजा नहीं है शॉप पे, फ्रूटी है। बताइए क्या हम फ्रूटी को ले लेंगे? डेफिनेटली ऑलमोस्ट सिमिलर सा टेस्ट है।
ऑलमोस्ट सिमिलर, 100% तो नहीं बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? तो माजा और फ्रूटी क्या हो गए? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। रक्षाबंधन का दिन है और आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है, छुट्टी नहीं मिली है इस बार आपको, इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब बड़े भैया चले गए हैं शॉप पे, तो क्या आप छोटे भाई को राखी बांध के एग्जाम देने जा सकते हो? डेफिनेटली यस, हम जा सकते हैं। मम्मी को कोई काम है, आप पढ़ाई कर रहे हो और छोटा वाला भाई वहां पे अवेलेबल है, मम्मी को सिर्फ इतना सा काम था कि फ्रिज से कुछ सामान किचन में पकड़ाना था, क्या आपकी जगह आपके ब्रदर को कहा जा सकता है? डेफिनेटली यस, कहा जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है उनको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन से गुड्स कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। भूलना नहीं, अभी कुछ एग्जांपल्स दोगे आप लोग? सब्स्टिट्यूट गुड्स मीनिंग याद कीजिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स which can be used in the place of one another, या we can say which can replace one another। ऐसी चीजें जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकॉन डी एंड नींबू पानी। हम बहुत थक के बाहर से आए हैं, हम ग्लूकॉन डी भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, है ना? चलिए अब आप मुझे एग्जांपल्स दे दीजिए वन बाय वन सब्स्टिट्यूट गुड्स के। रेज योर हैंड्स, हु विल गिव द एग्जांपल्स? आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल देने हैं, जल्दी जल्दी। कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक्टिवा और मेस्ट्रो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। यस, करण विल गिव द एग्जांपल। सबको देने हैं, ध्यान रखना। यस करण। मैम एमआरएफ बैट या सीएट टायर्स बैट। एमआरएफ और टायर्स, बिल्कुल सही। यस फाल्गुनी। मैम जैसे नोटबुक्स हो गई, एक एक क्लासमेट की नोटबुक और एक श्री कंपनी की नोटबुक, तो ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है क्योंकि काम सेम ही करती है, लिखना ही है हमें नोटबुक में। यस, वेरी गुड। अब ये क्लासमेट का रजिस्टर ले लीजिए या श्री का रजिस्टर ले लीजिए, बात एक ही है। ओके भारती, एनी वन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकती हूँ, रेडी रहिएगा एग्जाम्पल के साथ। यस भारती। भारती बी क्विक, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम हम नटराज की भी पेंसिल यूज कर सकते हैं और अप्सरा की भी। बिल्कुल, पेंसिल नटराज की भी यूज की जा सकती है, अप्सरा की भी यूज की जा सकती है। यस वरुण। मैम पेप्सी और कोका कोला। बिल्कुल, पेप्सी एंड कोक दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, वैभव वाज आल्सो गिविंग सम एग्जांपल। यस वैभव, रेज योर हैंड अगेन। यस yes beta, you can unmute and speak. चलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहा है वैभव। यस जानवी। Pringles and Lay's. मैम फोन बिंगो मैम एंड ले। यस यस वैभव। फोन मैम एक वीवो का और एक यस फोन, बिल्कुल सही। वीवो का फोन ले लीजिए, ओप्पो का फोन ले लीजिए, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? Goods which can be used in the place of one another are known as substitute goods। आप सबको याद रहना चाहिए, ठीक है? पैरागॉन की चप्पल ले लीजिए, बाटा की ले लीजिए, ये फुटवेयर्स एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है। तो सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से अब देखना। आई एम रिपीटिंग द थिंग। अगर आप सोच लें कि आप इकोनॉमिक्स में रटाफिकेशन करके काम चला लेंगे तो इसकी 0% प्रोबेबिलिटीज है। आपको सारी चीजें कंसेप्चुअली ही चलानी पड़ेगी, ठीक है? तो देखिए कंसेप्ट क्या है। हमें ये बताना है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड में कौन सा? सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। इस कमोडिटी की प्राइस हमारी गिवन कमोडिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगी? यानी अगर मैं बात करूं कोलगेट की, हमें डिमांड तो लेनी है कोलगेट की और हमें प्राइस लेनी है पेप्सोडेंट की। हमें बताना है एक बार कि पेप्सोडेंट की प्राइस बढ़ने से कोलगेट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, और एक बार बताना है पेप्सोडेंट की प्राइस कम होने से कोलगेट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ?
हमें प्राइस तो लेनी है सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की और हमें डिमांड लेनी है अपनी कमोडिटी की। व्हाट वी आर सपोज टू इन्फॉर्म, हमें बताना है कि अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो कोलगेट की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, या सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी तो कोलगेट की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए, आप दिमाग लगाइएगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पेप्सोडेंट और कोलगेट दोनों की सपोज 50 ग्राम की ट्यूब, एक बार हम बहुत छोटी सी ट्यूब ले रहे हैं, 50 ग्राम की टूथपेस्ट की ट्यूब, पेप्सोडेंट की भी आ रही थी 20 रुपीज की, कोलगेट की भी आ रही थी 20 रुपीज की। अब कोलगेट की प्राइस सेम टू सेम है, हमें इसको चेंज नहीं करना है। पेप्सोडेंट की प्राइस 20 से बढ़ के 30 हो जाती है, यानी पेप्सोडेंट की सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाती है। ओके, बी रेडी विद योर आंसर्स। मुझे बताइए जल्दी से, कोलगेट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कोलगेट की प्राइस कांस्टेंट ही है, चेंज हुई नहीं है। पेप्सोडेंट की प्राइस इंक्रीज हो गई है, कोलगेट की डिमांड, वेरी गुड। पंकज विल टेल अस द आंसर। यस पंकज। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छा अभी देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और यस लक्ष्य, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, कोलगेट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कोलगेट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, आंसर तो सही है आपका। इसको एक्सप्लेन कौन कर सकता है? कोलगेट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, करण गुप्ता एक्सप्लेन इट। मैम इसलिए इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि मैम उसकी जो उसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गई, तो लोग सोचेंगे वो इतना महंगा है, कोलगेट खरीद लेते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कोलगेट और पेप्सोडेंट काम तो सेम ही कर रहे हैं ना। जब 50 ग्राम का कोलगेट भी आपको 20 रुपए में मिल रहा है और 50 ग्राम का पेप्सोडेंट भी आपको 20 की जगह आप 30 में मिल रहा है, तो हम क्यों 30 रुपीज वाला खरीदेंगे? मैक्सिमम कंज्यूमर्स क्या करेंगे, पेप्सोडेंट से कोलगेट पे शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सोडेंट से कोलगेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको लिख लेना है, पॉइंट के नीचे आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए किस अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए, यू विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, और इसको याद नहीं कर पाएंगे, लॉजिक ही लगाना पड़ेगा हर बार। आप ऐसे लिखिए, पी आर ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट अगर इंक्रीज होगा तो हमारे कमोडिटी की डिमांड डी एक्स, यानी डिमांड फॉर गुड एक्स, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट कॉस्टली हो जाएगा और कंज्यूमर उसको छोड़ के किसी दूसरे गुड पे आने लगेगी, तो हमारी कमोडिटी परचेज करने लगेंगे, और जब वो परचेज करेंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह गया हो तो हैंड रेज करके पूछ लो। आप में से इफ एनीवन इज फीलिंग कि हमें नहीं आया है, वी वांट अ री एक्सप्लेनेशन, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। है कोई ऐसा? नो? ऑल राइट देन, कीर्ति वांट टू आस्क समथिंग। यस कीर्ति। मैम अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड थोड़ा ना बढ़ेगी। बेटा प्राइस हमारे प्रोडक्ट का नहीं बढ़ा है, प्राइस सब्स्टिट्यूट का इंक्रीज हुआ है। हैव अ लुक व्हाट आई हैव रिटन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और रिलेटेड में भी किसका, सब्स्टिट्यूट का। हम डिमांड कोलगेट की ले रहे हैं और हमने प्राइस इंक्रीज की है पेप्सोडेंट की। इज इट ओके? ओके मैम। चलिए सभी बच्चे ध्यान रखना, अगर यहाँ पी एक्स होगा तो ये फैक्टर नंबर फर्स्ट होता प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पी एक्स अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स फॉल होगा, और पी एक्स फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स बढ़ेगा। ये हमने फैक्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम फैक्टर नंबर 1 को छोड़ चुके हैं और सेकेंड फैक्टर पे आ गए हैं। सेकेंड फैक्टर आपका पी आर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। कौन सी प्राइस? रिलेटेड गुड्स की प्राइस। रिलेटेड गुड में हमने लिया पहले सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं वापस, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम करते हैं। सेम एग्जांपल, कोलगेट पेप्सोडेंट 50 ग्राम का पेप्सोडेंट 20 रुपीज पे आ रहा था, और कोलगेट भी 50 ग्राम का कितने रुपीज पे आ रहा था, 20 रुपीज पे। अब पेप्सोडेंट की प्राइस
कम हो जाती है, 20 रुपीज की जगह 10 रुपीज हो जाती है। अब आप बताइए कोलगेट की डिमांड के साथ क्या होगा। पेप्सोडेंट की प्राइस कम हो गई, रेज योर हैंड्स, बी क्विक, सबको आना चाहिए। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू गिव इट अ ट्राई। बाकी बच्चे जल्दी से कोशिश कीजिए। यस, यशिका, याशिका विल टेल अस। यस याशिका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम पेप्सोडेंट की डिमांड ज्यादा होगी, कोलगेट की कम होएगी मैम। हाँ, हमें अभी सिर्फ कोलगेट की बात करनी है, हम पेप्सोडेंट की डिमांड नहीं लेंगे, ठीक है। कोलगेट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, राइट? यस मैम। ओके, वेरी गुड, कोलगेट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। दिव्यांश बेटा, आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं? आई गेस इट इज योर फर्स्ट क्लास। यस मैम। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा। चलिए, तो देखिए हमने क्या सीखा। हमने सीखा सब्स्टिट्यूट गुड की अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, और सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होते ही हमारी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सब्स्टिट्यूट सस्ता हुआ तो कोलगेट वाले कंज्यूमर पेप्सोडेंट की तरफ जाने लगेंगे। कोलगेट वाले कंज्यूमर क्या करेंगे? पेप्सोडेंट परचेज करने लगेंगे, क्योंकि है तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, दोनों एक दूसरे की जगह बहुत आराम से यूज किए जा सकते हैं। तो हमने रिलेटेड गुड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, रीडिंग बुक से आपको करनी पड़ेगी। अब दूसरा रिलेटेड गुड होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हस्बैंड एंड वाइफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था ना कि राखी का दिन है, रक्षाबंधन है, आपका एग्जामिनेशन है, आपको जाना है, तो बड़े भैया अगर ऑफिस चले गए हैं तो आप छोटे भैया को राखी बांध के जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कोई फेस्टिवल है और पूजा करने बैठना है, हस्बैंड और वाइफ बैठते हैं, बेसिकली कपल बैठता है पूजा में, है ना। अब वाइफ नहीं है घर पे और वाइफ किसी काम में बिजी है, तो दूसरे की वाइफ को पकड़ के बैठा सकते हैं क्या? डेफिनेटली नो, नहीं बिठा सकते, है ना। अगर साथ में कोई काम हस्बैंड एंड वाइफ का है तो वो उसी कपल को करना पड़ेगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी और की वाइफ को वहां पे पकड़ के नहीं बैठाया जा सकता। यानी ये ऐसे गुड है जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी तो हमने हस्बैंड और वाइफ लिया, गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना यूज नहीं किए जा सकते। एक दो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, फिर आप एग्जांपल्स दीजिएगा मुझे। मैंने एग्जांपल दे दिया जूम एंड इंटरनेट। जूम एंड इंटरनेट, चलिए आप एग्जांपल्स दीजिए। ओके, करण विल टेल अस। यस करण। मैम व्हीकल एंड फ्यूल। व्हीकल एंड फ्यूल, वेरी गुड। मेरे पास स्कूटी खड़ी है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं। व्हीकल और फ्यूल दोनों कौन से गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, नेक्स्ट। यस लक्ष्य। बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल, बिल्कुल सही। लेकिन मम्मी यूज कर सकती है बैट को बिना बॉल के भी, है ना, हम पे यूज किया जा सकता है। बट बेसिकली करेक्ट एग्जांपल, बैट एंड बॉल आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, एनी मोर एग्जांपल्स? यस, ऑल ऑफ यू गिव इट अ ट्राई। यस, मनश्व विल टेल अस समथिंग। यस मनस। मैम बल्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। लाइट गई हुई है तो वो बल्ब को हम सब देख सकते हैं, वो किसी भी काम का नहीं है, बिना पावर के वो किसी भी काम का नहीं है। वेरी गुड। यस फाल्गुनी। मैम मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड। यस, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वेरी गुड। यस, लक्ष्य ने आंसर दे दिया। क्या जानवी? मैम बुक्स एंड पेन। रजिस्टर एंड पेन, बुक तो फिर भी यूज हो जाएगी, रजिस्टर एंड पेन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, क्या मैं कह सकती हूँ ब्लैक बोर्ड एंड चौक, ये भी एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। तो वो गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप द एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड द मीनिंग इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमें बात करनी है
कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे साथ क्या होगा। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ इंक पेन का। इंक पेन किसी ने देख रखा है, किसी ने यूज कर रखा है? पहले जो इंक पेन आते थे जिसमें इंक फिल की जाती थी, आपने जो पढ़ा है ना इंग्लिश में, आई फॉर इंक पॉट, आई से इंक पॉट वाला, वो इंक पॉट वाला घर पे इंक पॉट रख के और फिर इंक पेन में फिल करते थे इंक को, उस इंक पेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किए हैं जिन्होंने देख रखा है। अब हम इंक पेन की बात करते हैं और इंक पेन के साथ बात करते हैं इंक पॉट की। ये दोनों कैसे गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब अगर इंक पेन की प्राइसेस बढ़ गई, रिसेंट में इंक पेन की प्राइस बहुत बढ़ गई, अब 100 रुपए का 200 रुपए का आता है इंक पेन। तो जैसे ही इंक पेन की प्राइस बढ़ी, इंक पॉट की डिमांड के साथ क्या होगा? यस पंकज, कैन यू टेल अस? मैम ये सब्स्टिट्यूट कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने अगर सब्स्टिट्यूट बोल दिया तो बाय मिस्टेक बोला होगा। हम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? Yes, we are discussing complementary goods. Ink pad, ink pot and ink pen are complementary goods. अगर मैंने by mistake substitute बोल दिया हो तो इग्नोर कीजिए, ये दो complementary goods हैं। चलिए अब मुझे बताइए, इंक पेन की प्राइस बढ़ जाएगी तो इंक पॉट की डिमांड के साथ क्या होगा? यस भारती विल टेल अस। मैम इंक्रीज हो जाएगी, अभी देखते हैं। यस वरुण। मैम उसकी डिमांड में भी डिक्रीज होएगा। डिक्रीज होगा बेटा, क्यों डिक्रीज होगा? देखिए इंक मैम पेन की प्राइस, बताइए। मैम क्योंकि इंक पेन की प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, और इंक पेन अगर कोई मतलब इंक पेन की डिमांड डिक्रीज होएगी तो इंक पॉट की जरूरत भी कम हो जाएगी, तो उसकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए भाई वरुण के लिए, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। Increase in price of ink pen will reduce the demand for ink pen, and when there is less demand of ink pen, people will not purchase ink pot also. तो ink pot की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। हमें बात ink pot की करनी है यहाँ पे। और बाय चांस ink pen सस्ता हो जाता है, इंक पेन की प्राइस कम हो जाती है, तो लोग इंक पेन को ज्यादा यूज करेंगे, इंक पेन को ज्यादा यूज करेंगे तो इंक पॉट की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं एरो लगा के लिखूं तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, किसी को कंफ्यूजन रह जाए तो पूछ ले। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड में भी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, और इसकी प्राइस कम होगी तो हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ एक्स लिया है मैंने, यानी एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं और प्राइस उसके रिलेटेड गुड की ले। चलिए ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट किया है। आपकी बुक में मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे है, अच्छे से रीडिंग जरूर करिए। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, प्रॉपर रीडिंग आप खुद करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड का मीनिंग बता रखा है। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want. For example, tea and coffee. चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, है ना, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर an increase in price of substitute leads to an increase in demand for a given commodity and vice versa. मैं आपको रिटर्न में दे देती हूँ, ऐसे इसको याद करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको इसको ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमें तो इसको ऐसे एरो लगा के करना। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। कैसे याद किया हमने? हमने एग्जांपल लिया पेप्सोडेंट और कोलगेट। हमने देखा पेप्सोडेंट महंगा होगा तो कंज्यूमर कोलगेट ज्यादा खरीदेंगे, तो हमने ये एरो लगा दिया। इसी तरीके से हम एरो लगा देंगे कि इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको इसको इसी तरीके से लिख के लॉजिक लगा के याद करना है, वरना आप एग्जाम में गलती कर देंगे। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट वाला पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वेट फॉर अ सेकेंड, मैंने गलती से स्क्रीन हटा दिया है, गिव मी अ सेकेंड। मजा आ रहा होगा आपको, टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। जो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है उसको तो मजा आ रहा होगा डेफिनेटली।
सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो, राइट? देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। Demand for a given commodity is directly affected by change in price of substitute. Directly affected यानी direct relation है। Substitute की price बढ़ेगी तो हमारी commodity की demand बढ़ेगी, इसको direct relation कहते हैं, दोनों same direction में move होते हैं। Complementary goods कौन से होते हैं? Have a look. Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want. एक साथ use किए जाते हैं। For example, tea and sugar. अब आपके दिमाग में आएगा बिना चीनी के भी तो चाय पीते हैं। यहाँ हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स कहता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको किसी चीज का नशा नहीं है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन से डील करता है। तो नॉर्मली लोग मीठी चाय पीते हैं, टी एंड शुगर साथ में यूज होता है। अब वापस इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको लैंग्वेज से याद नहीं होगा, आपको तो एरो से याद होगा। An increase in price of complementary goods leads to a decrease in demand for given commodity and vice versa. कैसे याद किया था हमने? ऐसे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री। इंक पेन की प्राइस बढ़ेगी तो इंक पॉट की डिमांड कम हो जाएगी, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। An increase in price of complementary good leads to decrease in demand for given commodity and vice versa. इंक पेन की डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो इंक पॉट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। Anyone, any questions up to this part? किसी को लग रहा है कि मुझे कंफ्यूजन है या डाउट है तो बता दीजिए। मेक श्योर हम सबको साथ में चलना है, कोई भी एक बच्चा पीछे ना छूट जाए, है ना? आपकी ड्यूटी है कि आप साथ साथ में चलते रहिए। तो अगर किसी को लग रहा है कि मुझे तो ये पार्ट समझ में नहीं आया या मुझे कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। नो, वेरी गुड, देन आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपके लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट है, पेन पेंसिल, राइस व्हीट, इंक पेन, बॉल पेन, सीडी एंड डीवीडी। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से? टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड रिफिल, ब्रेक एंड सीमेंट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए, तो हमने फर्स्ट और सेकेंड डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है। थर्ड डिटर्मिनेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि थर्ड भी थोड़ा सा बड़ा है। मैं फोर्थ डिटर्मिनेंट आपको बता रही हूँ। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर यानी कंज्यूमर की इच्छा, कंज्यूमर की पसंद, कंज्यूमर की प्रेफरेंस। आप देखिए सिंपल सा एग्जांपल, सपोज टीवी में ये न्यूज आ गई कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, आती रहती है ऐसी न्यूज, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जैसे कि कोक, पेप्सी, मिरिंडा, माजा, माजा तो नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं आती है, कोक, पेप्सी, मिरिंडा, फेंटा, ये सारी जो चीजें, इनमें मिलावट है और ये कंज्यूमर की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इससे हमारे लंग्स खराब होते हैं, ऐसी न्यूज आ गई। अब मुझे बताइए, क्या ऐसी न्यूज आते हमारे पेरेंट्स हमें कहेंगे कि हमें कोक और पेप्सी कम खरीदनी है? डेफिनेटली यस, वो हमें नहीं यूज करने देंगे, एक टाइम तक तो इम्पैक्ट रहेगा। तो जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक के अगेंस्ट में यूज आई, ये अनफेवरेबल चेंज लाएगा, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर को अब ये चीजें नहीं अच्छी लगेगी, कंज्यूमर इसके अगेंस्ट हो जाएगा, इसके फेवर में नहीं रहेगा। जैसे ही इसके अगेंस्ट होगा, इन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर टेस्ट और प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंज आता है, कंज्यूमर रिड्यूसेस द डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी। एंड इन केस यही सेम न्यूज अगर मैं बात करूं रियल फ्रूट जूस या यही सेम अगर मैं बात करूं पतंजलि के फ्रूट जूस के लिए, उसके लिए कैसी न्यूज है? फेवरेबल न्यूज है, तो उसकी डिमांड इससे इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो जो भी चेंजेस होते हैं, अगर वो चेंज आपके लिए अनफेवरेबल है तो उससे आपकी डिमांड डिक्रीज होने वाली है, और अगर वो चेंज आपके लिए फेवरेबल है तो उससे आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हैव अ लुक व्हाट इज रिटन। Taste and preference of consumer directly influence the demand for commodity. They include change in fashion, custom, habit, etc. If consumer in fashion is in fashion or is
sorry, if the commodity is in fashion or is preferred by the consumers, then demand for such commodity rises. अगर वो चीज फैशन में है या कंज्यूमर अभी उसको प्रेफर कर रहे हैं, जैसे मास्क, अभी हम मास्क की फैशन में है ना, मास्क को प्रेफर कर रहे हैं तो मास्क की डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे ही कोविड-19 चला जाएगा उसकी फैशन भी चली जाएगी तो उसकी डिमांड वापस से डिक्रीज हो जाएगी। इज इट ओके टू एवरीवन? अभी हमने थर्ड और फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस नहीं किया है, ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आप यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करके रखिए, लर्निंग करके रखिए और साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ।